ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ جس مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جہنم کے آگ سے بچا کر جنت میں داخل کرنے کے لیے بھیجا تھا، جس مہینے کے اندر انسانوں کو اپنے تمام گناہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رکھ کر عاجزی اور انکساری کے ساتھ معافی طلب کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا، اس مہینے کو ہم نے اور آپ نے بہت ہی لاپرواہی اور سستی کے ساتھ گزار دیا، اور اس مہینے کی اہمیت، اس کی فضیلت ہم کو سمجھ میں نہیں آیا۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، آپ تقریباً رمضان کے 1 مہینہ پہلے سے اس کے متعلق باتیں سنتے آ رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو رمضان المبارک میں نازل کر کے اس کی فضیلت کی طرف اشارہ کیا کہ اس دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنانے کے بعد جو انسان کو اس دنیا کے اندر بھیجا اور دنیا کے اندر ان کے چلنے پھرنے کے لیے اور اخروی زندگی بنانے کے لیے جو کتاب نازل ہوئی وہ اسی مہینے کے اندر نازل کی گئی۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے تعلق سے ارشاد فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے رمضان المبارک کے مہینے کو پایا اور اس نے پورے رمضان کا روزہ رکھا ایمان کی حالات میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے نیکی کی امید لگاتے ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قسم کے سارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قام ایمانا واحتسابا، یعنی جس نے قیام کیا، تہجد پڑھی، تراویح کی نماز پڑھی، 5 وقت کے نماز کے ساتھ ساتھ قیام اللیل کا اہتمام کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے آدمی کے جو پچھلے گناہ تھے وہ سارے گناہ کو معاف کر دیا۔ خوشی کی بات ان مومنین کے لیے ہے، ان مسلمانوں کے لیے ہے جس نے اس مہینے کا اہتمام کیا۔ جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں رہنے کا حکم دیا، اس کا پورا اہتمام کیا، ان لوگوں کے لیے خوشی کی بات ہے، اور آج عید کے دن انہی قسم کے لوگوں کے لیے خوشی کا دن ہے۔ حقیقت میں جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی گناہوں کو نہیں رکھ سکا، وہ دل ہی دل میں آج کے دن کے بارے میں افسوس کرتے ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو ایک سنہرا موقع دیا تھا، اس موقع کو ہم نے گنوا دیا۔ میرے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو ہم سے رخصت تو کیا، لیکن ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے کے علاوہ اور بھی بہت طرح کے روزے ہمارے سامنے ہیں۔ مثال کے طور پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال کان کصیام الدہر، کہ جس نے رمضان المبارک کے مہینے کا روزہ رکھا اور پھر اس نے شوال مہینے کے 6 روزے رکھے، تو گویا اس نے ساری زندگی روزہ رکھا، پورے سال کا روزہ رکھا۔ اس کو ہم تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔
जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल हसनतो बेअशरत अमसालिहा। दूसरी रिवायत में, जैसे कि मैंने खुतबा जुमा के अंदर बयान किया था कि अल हसनतो बेअशरत अमसालिहा इला 700 ज़ैफ़। बुखारी शरीफ की रिवायत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला एक नेकी को उसके 10 गुना कर देता है। मुस्लिम शरीफ की रिवायत में एक नेकी को अल्लाह तबारक व तआला 10 से लेके 700 गुना तक इजाफा करता है। तो सबसे कमतर दर्जे का जो है 1 से लेके 10 गुना तक। तो गोया अगर किसी ने रमज़ानुल मुबारक के महीने का रोज़ा रखा तो उसने 10 महीने का रोज़ा रखा। एक को 10 से गुना करेंगे, 10 महीने निकलेंगे। उसी तरह शव्वाल महीने के 6 रोज़े अगर किसी ने रखे, एक रोज़ा को 10 गुना के बराबर आप कर लीजिए। 3 रोज़ा 1 महीना और 6 रोज़े 2 महीने के बराबर हो गए। तो गोया 10 महीने उधर और 2 महीने इधर, 12 महीने। तो किसी ने अगर रमज़ान के बाद शव्वाल महीने के 6 रोज़े रखे तो गोया उसने पूरे साल का रोज़ा रखा। अब जब पूरे साल का रोज़ा रखा, हर साल अगर कोई इस चीज़ का एहतमाम करता है तो गोया उसने सारी ज़िंदगी उसने रोज़ा रखा। इसमें एक मसला की वजाहत कर देना चाहूँगा कि जो 6 रोज़े की बात है शव्वाल के महीने में, इन 6 रोज़ों को आदमी उस वक्त तक ना रखे अगर उसके ऊपर किसी तरह की कोई क़ज़ा हो। अगर मर्द है, तबीयत ख़राब हो गई और किसी वजह से वो रोज़ा नहीं रख सका तो कम से कम पहले वो क़ज़ा कर लेंगे, उसके बाद ये 6 रोज़ा रखेंगे। उसी तरह हमारी माएँ और बहनें, अगर उनके रमज़ान के महीने में कुछ रोज़े अगर छूट गए होंगे तो वो पहले उन रोज़ों को मुकम्मल करेंगी, उसके बाद फिर शव्वाल के 6 रोज़े रखेंगे। तो ये इस तरह से अगर कोई शव्वाल के 6 महीने का एहतमाम करता है तो गोया उसने पूरे साल का रोज़ा रखा। और भी बहुत किस्म के रोज़े हैं। हम और आप जानते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सोमवार और जुमेरात के रोज़ा को मुस्तहब कहा गया है कि उस दिन भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा रखते थे। उसी तरह यौम अरफा का रोज़ा है, उसी तरह यौम आशूरा का रोज़ा है। अल्लाह तबारक व तआला हम लोगों को इन मुस्तहब्बात और इन सुन्नतों पर भी अमल करने की तौफीक दे। हम और आप यौम अरफा का रोज़ा रखते हैं, उसकी फ़जीलत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की कि 1 महीना पिछले और 1 महीना अगले, 1 महीना 1 साल पीछे और 1 साल आगे, गोया 2 साल का गुनाह उसमें माफ़ होता है। सुएला अन सौम यौम अरफा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युकफ़िरु सनतल माज़िया वल बाक़िया। तो अगर हम लोगों ने उसका एहतमाम किया तो हमारे पिछले 1 साल और आने वाला 1 साल, गोया 2 साल का गुनाह माफ़ हो जाएगा। उसी तरह यौम आशूरा के बारे में, 10 मुहर्रम के बारे में हम और आप जानते हैं कि रोज़ा रखना चाहिए। उसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया, आपने फरमाया कि युकफ़िरु सनतल माज़िया, पिछले 1 साल का गुनाह माफ़ हो जाता है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा रखा और रोज़ा रखने का हुक्म भी दिया। और फिर आखिरी उम्र में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं अगले साल बाकी रहूं तो 9वीं मुहर्रम का भी मैं रोज़ा रखूँगा। उससे पहले ही आपका इंतकाल हो गया था। बहरहाल मोमिनीन और वो मुसलमान जिनको आज थोड़ी सी मायूसी हो रही है कि रमज़ान को हमने गफलत में और सुस्ती में खो दिया, उनके लिए और भी बहुत सारे मौक़े हैं कि इन मौक़े में, इन अय्याम में अगर वो रोज़ा रखे तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला हमारे अगले और पिछले जितने छोटे गुनाह होते हैं, सगीरा जो भी गुनाह होते हैं, वो तमाम के तमाम गुनाहों को माफ़ कर देगा। जहाँ तक कबायर की बात है तो कबीरा गुनाह के बारे में है कि अल्लाह तबारक व तआला के सामने
जब तक आदमी नहीं गिड़गिड़ाएगा, उसके ना करने का इरादा नहीं करेगा, जब तक उसका तौबा नहीं करेगा, तब तक माफ़ नहीं करता है। उसी तरह हुकूकुल इबाद, अगर किसी ने किसी बंदे के साथ, किसी इंसान के साथ किसी तरह की कोई जुल्म ज़्यादती की, उसको गाली दिया, उसको मार दिया, कोई भी नाइंसाफ़ी की, तो उसके लिए उस आदमी को मजलूम से माफ़ी लेना होगा, तब जाकर अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाह को माफ़ करता है। यहीं से मैं अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ। आखिर में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों के तमाम दुआओं को कबूल फरमाएँ।